Hello students, in this audio video I will explain you the production possibility curve, its shift in production possibility curve, movement on production possibility curve, but try to show me through this graph. Uh, Here what you see that this is the graph, this is x-axis and this is y-axis. Okay, it's not working. I'm using finger. So what we have seen that if uh, these are the various combinations of production of uh, x and these are the various combinations of production of y, and when we join all these points a graph is drawn. This is ppc. Okay, ppc. Now दिस ये क्या बताता है कि अगर सपोज कीजिए हमारा रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस ₹1000, तो ये एक्स और वाई का प्रोडक्शन संभव है। सपोज कीजिए अचानक हमारे पास रिसोर्सेस बढ़ के हो गए 1500, सॉरी, सपोज कीजिए अचानक हमारे पास रिसोर्सेस बढ़ के हो गए 1500, तो व्हाट विल हैपन ऑन दिस पीपीसी? This PPC will be drawn like this. Earlier the resources was, अच्छा, I am giving a name PP1. ये जो ग्राफ है, ये PP1 ग्राफ पहले वाला है PPC का। वो कब है? जब रिसोर्सेस हमारे पास 1000, when we have the resources 1000 for both x and y, then this PPC was prepared. But now what happened? We have increased our resources to 1500 for both x and y. So what is happening? A new graph has been drawn, uh, that is to the right and upper part of the previous PP1 graph, and this new graph is P1, P0, P2. तो when this ये राइटवर्ड जो मूवमेंट हुआ ग्राफ में, दैट इज कॉल्ड shift in PPC to the right, rightward shift. Why rightward shift in the PPC? Because we have increased the resources for both x and y. That's why there is rightward shift in the PPC. But suppose if the resources is suppose if the resources is reduced, suppose if the resources is reduced to 800. Earlier it was 1000, now 1500, then 800. Resources is reduced. So what will happen? A new PPC will be drawn lower than this. तो ये हो रहा है। इसको अगर फ्रेशली अगर ड्रॉ करके बताएं तो क्या हो रहा है? पहला पीपीसी ये था जब 1000 रुपीज़ रिसोर्सेज थे। जैसे ही रिसोर्सेज बढ़ा 1500, तो ये पीपीसी राइट में बना, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ पहले वाले पीपीसी के राइट और अपर पार्ट में। और जैसे ही रिसोर्सेज 800 हो गया तो ये न्यू पीपीसी इधर ये बना। तो ये ओरिजिनल था, ये P1 मान लेते हैं इसका नाम, और ये P2 मान लेते हैं, P2। तो ये जो ग्राफ है, पहला वाला जो जीरो जहाँ मैंने लिखा वो एग्जिस्टिंग पीपीसी था। व्हेन अच्छा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स यूनिट को दिखा रहा है, ये वाई के आउटपुट को दिखा रहा है। तो जब व्हेन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज वाज 1000 for both x and y, then we have the zero graph of PPC. Suddenly we increase the resources for both from 1000 to 1500. So due to extra additional input of 500 resources, we have a production of
now the production is increased to right, and this new P1 graph is drawn, which is from the right to the right and upward part of the existing graph. And again, if the resources is reduced to 800, then output is reduced to P2 graph. P2 graph. So when resources increased for both X and Y, then PPC shifted to the right, and when resources are reduced for both, PPC shifted to left. अगर इसको हिंदी में समझाएं कि जब हमारा रिसोर्सेस 1000 था, तब एक्स और वाई का प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ पीपीसी 0 वाला था, और जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ के रिसोर्सेज बढ़ के 1500 हो गया, तो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो ग्राफ है वो पहले वाले PP0 वाले ग्राफ से बढ़ करके PP1 वाले ग्राफ पे आ गया, जो कि राइट साइड में है, राइट एंड अपर पार्ट में शिफ्ट हो गया। तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया पीपीसी में जब रिसोर्सेज बढ़े, और फिर जब रिसोर्सेज घटा के दोनों के लिए 800 रुपया कर दिए, तो घट के जो आउटपुट है वो 800 हो गया, रिसोर्सेज कम हो गया, इसलिए पीपीसी भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। देखिए PP2 ग्राफ मैंने बनाया है, तो ये शिफ्ट इन पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को मैंने आपको पढ़ाया। थैंक यू, इसको समझिए, और यदि दिक्कत हो तो आप उसको मुझसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पीपीसी शिफ्ट में यही दिखला रहा है कि पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। वे कब होगा? जब रिसोर्सेस कम कर देंगे। ये फिगर 1.6 को मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जो P1 था ये ओरिजिनल ग्राफ था, P डैश ये ओरिजिनल ग्राफ था, और अगर रिसोर्सेस कम करेंगे तो ये P2 ग्राफ बना, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, और यदि रिसोर्सेस बढ़ा देंगे तो ये P1 बना आपका जो कि राइटवर्ड शिफ्ट को दिखाता है, और P2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट को दिखाता है। ओरिजिनल पीपीसी था हमारा PP1। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पीपीसी शिफ्ट के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, with discovery of new stock of resources or an advancement in technology, the production capacity of an economy increases. The economy can produce more good X and Y, जो अभी मैं बता रहा आपको. So the new graph will be to the excuse me, to the right. But if resources for both decreases, then new graph will be P2 leftward shift. तो ये इसमें सिखाया गया। बाद वाले चीज़ में हम आपको सिखलाएंगे। ये जो देख रहे हैं कि 1.7 में जो आप देख रहे हैं, या नीचे 1.8 में जो देख रहे हैं, वो आपको बाद में सिखा रहे हो। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अगर रिसोर्सेस बढ़ जाएगा दोनों के लिए, तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी अपर राइट एंड अपर पार्ट ऑफ द existing graph, and if there is resources decrease for both of them, then the new PPC is to the left of the existing PPC. That represents lesser resources for both P1 and X and Y. और अगर वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो दिखाता है कि दोनों के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं। थैंक यू।